Assalamu alaikum to everyone. Hope everyone is fine. This is Nawaz Sharif. Today we shall be discussing about the scheme PM Solar Free Electricity Scheme, which has been recently launched by the Union Government. So we shall be discussing in detail. So please be with me. So this scheme will not only be beneficial for your exam purpose, but also for your daily life, because you should be knowing about this scheme, so that you could know the eligibility criteria for availing the benefits of this scheme. So please be with me. Let's get started. So first of all, what is this PM Solar Free Electricity Scheme, and who is eligible for this? What are the eligibility criteria? What are the cost? What you have to bear? So center launched, Union government launched PM Solar Free Electricity Scheme. Free Electricity Scheme this year. So in this scheme, center has allocated for this scheme, center has allocated 75,000 crore rupees. For this scheme, center has allocated 75,000 crore. But before, why this is in news? Because center tweaks this scheme. Center has tweaked this scheme, means center has changed the scheme. Before under this scheme, before under this scheme, you will you was getting 100% subsidy from the center. But now subsidy has been reduced. Subsidy amount has been reduced. Subsidy amount has been reduced to 60%. So 40% you will have to bear, and 60% will be bore by the center. So for this, what is the eligibility criteria to get this scheme? So who are going to register this scheme? Who will be beneficiary? So eligibility क्या होगी या beneficiaries कौन होंगे? Beneficiaries of this scheme, PM Solar Free Electricity Scheme. So इसको हिंदी में एक अलग नाम दिया है, that is PM सूर्या घर मुफ्त बिजली स्कीम. बिजली स्कीम या योजना. स्कीम को हम योजना बोलते हैं. इस स्कीम में क्या है, सेंटर जो है वो सोलर सिस्टम्स जो है ना, सोलर ग्रिड सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करेगी, और उसकी रेंज जो होगी, उसकी कैपेसिटी जो होगी वो 1 किलोवाट से शुरू होगी, और 2 kilowatt, 3 kilowatt, 4 kilowatt, 5 kilowatt, 6 kilowatt. It is up to you which one you want to register. So for this, first of all, you will get 60% subsidy. 60% subsidy will be getting you from this, and household will have to pay the remaining 40%. So minimum amount that you have to pay, beneficiaries or household have to pay, that is 20,000. 20,000 पे करना पड़ेगा for 1 kilowatt, for 1 kilowatt installation, solar grid installation. इतना जो है ना मिनिमम आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज 20,000 फॉर 1 किलोवाट. सो इसका जो बेनिफिशियरी होगा
और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो? नंबर 1, यू शुड बी हैविंग suitable rooftop. Suitable rooftop. Suitable rooftop means आपके पास जो है ना पक्का रूफ होना चाहिए, एक अच्छा छत होना चाहिए, कच्चा मकान नहीं होना चाहिए, मतलब आपका लेंटर भी हो या छत हो, लेकिन इट शुड बी सूटेबल, ताकि उस पर ग्रिड लग सके, ताकि उस पर ग्रिड लग सके, वो प्लेट्स सोलर पैनल्स जो होंगे वो लग सके। और दूसरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी वो कि यू शुड बी हैविंग एन एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्शन। एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्शन मींस एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्शन। एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्शन क्या है? आपके पास एग्जिस्टिंग पहले वाला ग्रिड कनेक्शन होना चाहिए, मींस कि आपके पास जो है ना एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर हम सिंपल भाषा में समझिए तो आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए बिजली का, इसका इलेक्ट्रिसिटी का एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास। यू शुड बी पेइंग बिल, ऑलरेडी यू आर पेइंग बिल, और आपके पास छत है। और नंबर 1 क्राइटेरिया क्या है आपको इस स्कीम के फ़ायदा उठाने के लिए, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कि आपको एक छत होना चाहिए, घर का पक्का हो या लेंटर हो या छत हो। और दूसरा जो है ना आपको एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्शन होना चाहिए, यानी कि आपको पहले बिजली होनी चाहिए, लेकिन आपको एग्रीमेंट होना चाहिए, उसकी आप बिल पे कर रहे होते। तो ये दो जो है ना सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और आप सिंपली जो है यू कैन टेक आधार कार्ड, आप आधार कार्ड लेके आप किसी भी इस सर्विस सेंटर ये से जो है आपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और इस स्कीम के बेनिफिशियरी बन सकते हो। तो उसके बाद जो है इसमें क्या क्या है, इसमें है इस स्कीम में क्या है, मान लो अभी जो करंट प्राइस जो है ना, करंट प्राइस जो इंडिया में है, करंट प्राइस जो इंडिया में सोलर इंस्टॉलेशन की है 1 केवी के लिए क्या है, 1 किलो वाट के लिए क्या है, 1 किलो वाट के लिए क्या है, वो है 50,000, वो है 50,000। लेकिन यही 50,000 में जो है ना आप सरकार जो है आपको, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो आपको सब्सिडी देती है, तो आपको जो है ना 20,000 पे करने हैं, आपको 20,000 पे करने हैं, आपको ओनली 20,000 पे करनी है। इट मीन्स 30,000 यू आर गेटिंग द सब्सिडी अमाउंट, 30,000 यू आर गेटिंग सब्सिडी अमाउंट फॉर दिस 1 किलोवाट। इसी तरह से अगर आप 2 किलोवाट का इंस्टॉलेशन करना चाहते हो, 2 किलोवाट का इंस्टॉलेशन करना चाहते हो, तो 2 किलोवाट के लिए आपको 38,000 के आसपास भरने पड़ेंगे, आपको 38,000 के आसपास भरने पड़ेंगे। और बाकी के जो 60,000 जो है ना वो सरकार उठाएगी, आपको सब्सिडी देगी। और इतना नहीं, बल्कि अब आपको मान लो कि आप में से कोई ऐसा है कि यू आर नॉट पेइंग दिस अमाउंट इन 1 इंस्टॉलमेंट, आप इस बैलेंस अमाउंट को नहीं पे कर पाते हो, तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, 12 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, दे विल बी गिविंग यू लोन फ्री, कोलेटरल फ्री लोन देंगे वो आपको। क्या है? कोलेटरल फ्री लोन मीन्स आपको वो ये 20,000 रुपया भी लोन देंगे, और विद इंटरेस्ट जो होगा ना आपको वो 7% के आसपास पड़ेगा, 7% के आसपास आपका इंटरेस्ट पड़ेगा इस 20,000 पे। और कोलेटरल फ्री लोन का मतलब ये है कि आपको जो है ना वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रखना है, आपको गारंटर नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको गारंटर नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ना PSVs जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनके अंदर जो है ना आप ये लोन ले सकते हो। और विदाउट कोलेटरल फ्री लोन, कोलेटरल फ्री लोन मीन्स आपको कोई सिक्योरिटी आपको गिरवी नहीं रखनी है वहाँ पे, और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी 7%, 6.5% के आसपास पड़ेगा, और जो बैंक का जो रेपो रेट है उससे 1% ज़्यादा पड़ेगा। तो ये हो गया इसका कि आपको इसका, अब इसके फ़ायदा क्या है आपको? अगर इस स्कीम के टाइटल में सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि दिस इज़ फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि क्यों इसको वाई दे आर सेइंग इट इज़ फ्री, वाई?
वाई? फ्री इलेक्ट्रिसिटी। स्कीम इसमें कुछ लोगों को ये भी है कि अ, उनमें कन्फ्यूजन ये है। सबसे पहले उनमें ये कन्फ्यूजन है कि मैंने देखा था कि वो लोग जो कह रहे हैं वो कि जो बिल जो है वो माफ़ कर दी जाएगी। बिल आपकी माफ़ इस तरह से नहीं होगी। यू विल हैव टू पे योर एग्जिस्टिंग कनेक्शन बिल। आपको जो है ना वो बिल पे करनी पड़ेगी। लेकिन आपको फ़ायदा ऐसे होगा, मान लो कि आपने 2 किलोवाट का जो है ना सोलर इंस्टॉलेशन कर लिया। आपने 2 किलोवाट का सोलर इंस्टॉलेशन अपने घर पे कर लिया, और जो ये सोलर इंस्टॉलेशन जो है ना, इसके लिए आपको पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो है ना, जो भी पावर के साथ पावर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े होंगे, तो वो जो है वो अपनी टीम बेच के जो है ना आपके घर में जो है ना वो इंस्टॉलेशन करेंगे। तो जो सोलर इंस्टॉलेशन जो है 2 किलोवाट का अगर आप करते हो, तो ये जो है ना मिनिमम 7 और मैक्सिमम 9 किलो ये यूनिट्स बिजली जो है ना प्रोड्यूस कर सकती है। वो प्रोड्यूस कर सकती है कितना? 7 से 9 यूनिट की बिजली वो प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसका मतलब 24 आवर्स में, कितने में? 24 आवर्स में। तो अब अगर मान लो कि आप क्या है, दिन में अगर मान लो आप 4 यूनिट बिजली कंज्यूम कर रहे हो, 4 यूनिट क्या है, अगर आप दिन में 4 यूनिट पर डे आप क्या कर रहे हो, वो कंज्यूम कर रहे हो घर के लिए, तो बाकी जो 4 यूनिट्स, रिमेनिंग 4 यूनिट होंगे, जो रिमेनिंग 4 यूनिट्स होंगे, रिमेनिंग 4 यूनिट्स जो होंगे ना, जो आपका सोलर प्रोड्यूस कर रहा है, जो आपका ग्रिड, आपके घर में जो ग्रिड लगा है छत के ऊपर, वो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 9 यूनिट्स या 8 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, मान के चलो आप। लेकिन 7 से 9 यूनिट वो प्रोड्यूस करता है अगर आप 2 किलोवाट का सोलर इंस्टॉलेशन करते हो। तो जो 4 यूनिट आप मतलब मान लो कि आपने डेली आप कंज्यूम करते हो, जो रिमेनिंग 4 यूनिट्स जो होंगे, तो रिमेनिंग 4 यूनिट्स जो होंगे दे विल बी ट्रांसपोर्टेड टू ग्रिड। उसको ट्रांसपोर्टेड टू ग्रिड, उसको वापस कर दिया जाएगा ग्रिड के को, मतलब उसको वापस कर दिया जाएगा ग्रिड को, जो इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड जहाँ से हम वो जो पावर यूज़ करते हैं पहले से ही जो यूज़ करते वो वहाँ उसको वापस कर दिया जाएगा। और मान लो कि 4 यूनिट्स जो है ना, 4 यूनिट्स बिजली, तो 30 दिन में 120 यूनिट। दिस 120 यूनिट जो है ना, इसकी बिल जो है ना आपको मतलब मीटर में स्मार्ट मीटर लगे लगे होंगे, तो 120 यूनिट की बिल, मान लो कि आगे अगर हम अभी 100 यूनिट की बिल भर रहे होंगे या 120 का ही बिल भर रहे होंगे बिजली बिल, तो 120 हमने सेव कर लिया यहाँ से, 120 हमने यूज़ भी कर लिया, लेकिन 120 यूनिट्स हमने सेव भी कर लिया और उसको हमने ग्रिड में ट्रांसपोर्ट भी कर लिया, क्योंकि स्मार्ट मीटर्स लगे होंगे और उसी तरह से जो है वो उसको इंस्टॉलेशन कर दी जाएगी कि जो रिमेनिंग जो बैलेंस पावर जो होगा ना वो आपको आपके ग्रिड में चला जाएगा, और वो 120 यूनिट का जो पैसा जो होगा ना वो आपकी बिल में से क्या कर दिया जाएगा, कंसेशन कर दिया जाएगा, उसको माइनस कर दिया जाएगा, वहाँ आप मतलब उसमें से वो ऑफसेट कर दिया जाएगा। ऑफसेट कर दिया जाएगा मीन्स वहाँ से बिल से आपको काट लिया जाएगा। मान लो किसी को अगर 120 यूनिट की बिल आती है, क्योंकि मीटर लगे हैं, 120 यूनिट की बिल लगी है आती है, तो वो 120 यूनिट अगर उसको यहाँ से ग्रिड को दे रहा है तो उसको बिल, दे विल हैव टू पे नो बिल। मान लो अगर कोई मान लो कि और एक एग्जांपल मैं दूंगा इसकी आपको। मान लो कि 6 मंथ्स जो है ना हमारा जो मतलब हैबिटेशन, मान लो आप वो माइग्रेट हो जाते हैं, हम माइग्रेट हो जाते हैं, कोई माइग्रेट हो जाता है 6 मंथ्स के लिए ऊपर चले जाता है तो उसमें क्या होगा, उसके जो 6 मंथ्स में जो है ना यूज़ नहीं होगा, बिजली प्रोड्यूस होगी लेकिन यूज़ नहीं होगी, दे विल बी एक्सप्लॉइटेड टू, मतलब कि वो 240 यूनिट मान लो आपके हैं बन रहे हैं, लेकिन उसमें से 40 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो इस महीने के, लेकिन 200 यूनिट की जो पावर है वो ग्रिड में जो है क्या कर दिया जाता है, वो वापस कर दिया जाता है, ग्रिड को वापस कर दिया जाता है। तो 200 यूनिट की तो आप वहाँ से मान लो कि आप 200 यूनिट 120 यूनिट पहले आप कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन आप बिजली कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन आप यहाँ से सरकार को 100 यूनिट फालतू दे रहे हो या 80 यूनिट फालतू दे रहे हो, तो वो नेक्स्ट मंथ में आपको ऑफसेट किया जाएगा। तो इट मीन्स आप यू आर गिविंग इलेक्ट्रिसिटी टू ग्रिड, आप यहाँ से ग्रिड को भी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। तो इस हिसाब से जो है ना इसको हम फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी, फ्री
बिजली स्कीम बोलते हैं, फ्री बिजली योजना बोलती है। ये इसके बेनिफिट होंगे, ये इसके बेनिफिट होंगे। होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें मतलब कि पैसा कैसे भरना है, कितना भरना है। किसी को 3 किलोवाट का लेना हो तो उसको 78,000 की सब्सिडी मिलेगी, 78,000 की सब्सिडी मिलती है उसको। 2 किलोवाट के लिए कितनी मिलती है, 60,000 की सब्सिडी मिलती है। 1 किलोवाट के लिए 40,000 की सब्सिडी मिलती है, 30,000 के आसपास की सब्सिडी मिलती है। तो ये सब्सिडी, और इसलिए 5-6 साल में जो है ना, जो आप मान लो आपने ये 20,000 रुपया पे किया 1 kV के लिए, तो 20,000 रुपया 5 या 6 साल में वो आपको क्या कर देगा, अपना वो मतलब इन्वेस्टमेंट फ्री कर देगा। इन्वेस्टमेंट क्या कर देगा, वो अपनी जो आपने कॉस्ट कर दी थी, कैपिटल कॉस्ट लगाई थी, वो इट विल बी फ्री, और उसके बाद भी आप जो है इसको कंज्यूम कर सकते हो बिजली को। तो ये इसका बेनिफिट। और मोस्ट बहुत अच्छा इस स्कीम के बारे में ये है कि आपको ना इंस्टॉलेशन वाले घर आएंगे, आपको ढूंढने का नहीं है कि क्या इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, टीम बिल्कुल घर आ जाएगी। नंबर 1। दूसरा इसका बेनिफिट आएगा कि आपको अगर किसी के पास पैसे नहीं है, वो लोन ले सकता है इसके लिए, वो भी कोलेटरल फ्री होगा, वो भी कोलेटरल फ्री लोन होगा, और लो इंटरेस्ट रेट होगा, लो इंटरेस्ट रेट होगा, लो इंटरेस्ट रेट के लिए होगा। और किसी को अगर पैसे है तो वो पे कर लेगा उसको। और तीसरा ये है कि अगर मौसम ख़राब होता है, बैड वेदर होता है, बैड वेदर कंडीशंस होती है, बैड वेदर कंडीशंस होती है, बैड वेदर होता है, रेनफॉल होती है, स्नो होती है, कुछ भी होता है, तो आपको जो है ना इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से तो मिलती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही बैड वेदर आ जाता है, अभी लाइटनिंग शुरू ही नहीं होती है तो बिजली चली जाती है यहाँ से। मोस्टली दिस हैपन्स इन आवर एरिया। तो आज भी बिजली नहीं है, आज भी बिजली नहीं है। आई एम स्टिल यूजिंग इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर। सो तो ये सबसे मोस्ट बेनिफिट जो है ना, सबसे ज़्यादा मुझे इसका ये बेनिफिट लगा कि अगर आप 20,000 पे भी कर रहे होंगे ना, तो आपको 4 यूनिट या 5 यूनिट की बिजली बन रही है, घर में बन रही है, तो आप उसको आसानी के साथ अपने आप फैन चला सकते हो, आप अपना ये उसमें से आप कंप्यूटर चला सकते हो, आप उसमें से आप अपना कभी कभार जो है ये एलईडीज बल्ब वगैरह, चार्जिंग वगैरह जो है ना, आराम से आप उससे कर सकते हो। तो ये जो है ना सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका ये है। लेकिन सिर्फ एलिजिबिलिटी 2 है इसके लिए, दैट इज़ कि आप क्या हो, एक रूफ टॉप होना चाहिए आपके लिए, एक रूफ टॉप होना चाहिए आपके लिए आपको, और दूसरा आपके पास ग्रिड का कनेक्शन, एग्जिस्टिंग ग्रिड, यानी आपकी बिजली की बिल भर रहे हो पहले से, एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्शन होना चाहिए। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। दिस वाज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन करंट अफेयर्स, द हिंदू आर्टिकल पे था। तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम आएगी पहले पहले, और आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट। सो ओके, थैंक यू। ज़रूर जो है ना इस स्कीम का जो है आप फ़ायदा ले लो, क्योंकि दिस इज़ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। इससे जो है ना पोल्यूशन फ्री भी रहेगा इंडिया, इससे पोल्यूशन फ्री भी रहेगा आपका माहौल, जो एरिया है, और आपका घर में जो है पोल्यूशन नहीं होगा। इसमें ज़्यादातर ख़तरा भी नहीं होता है यहाँ इसमें, जैसे बिजली में जो होता है ख़तरा रहता है शॉक्स वगैरह का, तो इसमें उतना ख़तरा नहीं रहता है। और मोस्ट पर्टिकुलरली जो है ये इट विल बी ग्रीन एनर्जी, मतलब पोल्यूशन फ्री होगा। ओके, थैंक यू।